New Hope TV, your encounter with God. I want you to turn your Bibles with me to the book of Luke 19 right now. चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें समय लूका का 19वां अध्याय Verses 29 onwards. पढ़ेंगे उसके 29वें वचन से। One day Lord Jesus sent two of his disciples into a village saying, और देखिए एक दिन ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने दो चेलों को एक गांव में भेजते कहते हुए Go into the village opposite you, and as you enter, you will find a colt tied. यीशु ने उसे कहा सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा On which no one has sat. जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, Loose it and bring it here. उसे खोल कर यहाँ ले आओ। The mandate to the disciples was to loose the donkey which was bound. और देखिए यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पर चेलों को जो मुख्य काम करने के लिए दिया गया था वो ये था कि उस गधे के बच्चे को खोल कर लेकर आए। Today I have a mandate from the Lord प्रभु की ओर से पासवान जी को एक मकसद दिया गया है that every person who is bound today will be loosed in Jesus' name. हर Come on. एक वो व्यक्ति जो बंधा हुआ है आज छूट जाएगा यीशु के नाम में। You will be loosed in आप Jesus' name. छूट जाएंगे यीशु के नाम If you में। believe this, you should say, I am loosed. I receive my deliverance in Jesus' name. अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो कहे कि हाँ मैं छूट गया हूँ, मैं अपना छुटकारा ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। And then further on it says, फिर आगे वचन में कहता है and if anyone asks you, और अगर कोई तुमसे पूछे why are you losing it? क्यों तुम इसे खोल रहे हो, Then you shall say to him, तो तुम्हें उनसे ये कहना है because the Lord has need of it. प्रभु को इसकी आवश्यकता है। You see, as we enter into deliverance, और देखिए जैसे हम छुटकारे के सत्य में कदम रखते there will be voices speaking against it. हैं और ऐसी आवाजें होती हैं जो इनके खिलाफ में बोलती हैं, Why are you doing this? क्यों तुम ये कर रहे हो। And we should speak the word and say, the Lord has mandated it. और देखिए हमें वचन कहना है ये कहते हुए कि प्रभु को इसकी जरूरत है। Lift your hands and say, every power that is stopping my deliverance be cut off in the name of Jesus. Say it. अपने हाथ उठाकर Hallelujah. बोले हर एक शक्ति जो मुझे रोकती है काट डाली जाए यीशु के नाम में। In the बोलिए name of Jesus. यीशु के नाम में। You see, in the deliverance process, आप listen to देखते हैं me. छुटकारे की प्रक्रिया में सुनिए, You must learn to speak the word. आपको वचन को बोलना सीखना चाहिए, You must know the word. आपको वचन पता होना चाहिए। So the first thing is you must get into the word. तो पहली चीज ये है कि आपको वचन में आना है। First दूसरा thing is मुद्दा, the mandate. देखिए ये तो दूसरा मुद्दा है, Write it लेकिन down. पहला जो है वो है उद्देश्य। The second thing दूसरा is the word in the process of deliverance. वचन छुटकारे के प्रक्रिया में। If there is no word, अगर कोई वचन नहीं होगा there is no deliverance. तो छुटकारा भी नहीं होगा। If there is no word, अगर कोई वचन ना हो you cannot maintain that deliverance. तो आप छुटकारा को बनाए नहीं रख सकते। So this is the first and the second point I want you to clearly remember. तो ये पहला और दूसरा मुद्दा है, चाहते हैं कि साफ तौर पर इसे आप याद रखें। Let me go to the third point. चले जाते हैं तीसरे मुद्दे One day I was praying over this lady, पर। एक दिन की बात है जब पासवान जी किसी महिला पे प्रार्थना and कर रहे I was casting out that demon from that precious sister. थे और उस बहुमूल्य बहन में से दुष्टात्मा को निकाल रहे थे। The devil spoke तब शैतान ने कहा, and said, she belongs to me, I will not leave her. शैतान ने ऐसा कहा कि ये मेरी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। And at that moment, this particular scripture flashed before my eyes. और उस खास पल में यही वचन, जो विशेष वचन पासवान जी की आंखों के सामने आया And I spoke out these words, the Lord has need of her, leave her. और इन्होंने ऐसा कहा कि प्रभु को इनकी जरूरत है, इन्हें छोड़ दो। You see, when God has need of something, देखिए जब परमेश्वर किसी चीज की जरूरत पड़ती है nobody has authority over it. तब किसी और का अधिकार उस पर नहीं होगा। All things were created for him. I want you to understand this. और चाहते कि आप समझ जाए हर एक चीज को उसके लिए बनाया गया है। If you need financial deliverance, if you need physical deliverance, mental deliverance, deliverance in your home, I want you to understand that everything about you belongs to him. और देखिए हो सकता है कि आपको पैसों में छुटकारा चाहिए हो, या फिर शारीरिक छुटकारा, या परिवार में छुटकारा। देखिए हर एक चीज को उसी के लिए बनाया गया है। The third point I want you to understand is that your assignment over your life is to serve him. और तीसरा मुद्दा चाहते हैं कि आप समझ जाए वो ये है कि आपके जीवन पर प्रभु की ओर से जो दैवीय काम है वो है उसकी सेवा करना। No one can fulfill what God has called you for. और देखिए जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपके अलावा कोई और उस काम को पूरा नहीं कर सकेगा। What God wants to do through you, through your family, no one else can do it. Understand this truth right now. इस सच्चाई को आप समझ जाए कि जो काम आपके जरिए और आपके परिवार के जरिए परमेश्वर चाहता है कि पूरा करे, कोई और उसे पूरा नहीं कर सकता। If you understand this truth, अगर इस सच्चाई को आप समझ जाएंगे, the hold of the devil will be broken over your finances, over your land, your property. It will be broken today in the name of Jesus. तब शैतान की पकड़ जो है आपकी जिंदगी
जिंदगी पर से, Yes. आपके संपत्ति, आपके पैसों पर से आज ही टूट जाएंगे यीशु के नाम में। What belongs to the Lord, जो प्रभु का है, nobody can pull it out of his hands. कोई भी उसके हाथों से छीन नहीं सकता। Today, if you are sick and watching me right now, आज अगर आप बीमार हैं और हमें देख रहे हैं इस the वक्त, Lord is touching you on your bed, upon your chair, wherever you are sitting right now. The Lord will touch you now. देखिए प्रभु आपके बिस्तर पे जहां पर भी या फिर कुर्सी पे जहां पर भी आप बैठे हैं या लेटे पड़े हैं, प्रभु आपको छुएगा। Somebody lift your hand and say, I receive this in Jesus' name. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे मैं इसे ग्रहण करता हूं यीशु के नाम Say में। thank you, Lord. बड़े धन्यवाद हुआ। Go with me to the book of Jeremiah, chapter 30 and verse 8 right now. निकालिए इस समय यिर्मयाह का 30वां अध्याय उसका 8वां वचन। For it shall come to pass in that day, says the Lord of hosts, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि उस दिन ऐसा होगा that I will break his yoke from your neck कि मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा and will burst your bonds, और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, and foreigners shall no more enslave them. और परदेसी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे। Verse 9. 9वां वचन। But they shall serve the Lord their God, मगर वे अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे and David their king, whom I will raise up for them. और अपने राजा दाऊद की जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊं। Notice it says, in that day. गौर करें वचन में यहाँ पर आया उस दिन। Which day? कौन से दिन? The day the yoke of the devil will be broken. उस दिन जब शैतान का जुआ तोड़ डाला जाएगा। They will serve the Lord. वे प्रभु की सेवा करेंगे। Notice, when will they serve the Lord? गौर करेंगे कब वे प्रभु की सेवा करेंगे? In the day the yoke is broken. जिस दिन वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। Please, I want you to understand this. चाहते कि आप इस बात को समझ जाएं। You see, the purpose why your bondage will be broken is not so that you can just have a good time. There's nothing wrong with that. But your main purpose of your deliverance, your healing, is to serve the Lord. और देखिए ये कि छुटकारा होना इसका मतलब ये नहीं कि आप मौज मस्ती करें, इसके खिलाफ में नहीं है। देखिए कर सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य आपके चंगाई या छुटकारे का ये है कि आप प्रभु की सेवा करें। Many people, after they receive financial deliverance, the bondage is broken, the finance starts coming in, they are not to be seen anywhere near God. और देखिए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जब उनके ऊपर से वो बंधन टूट जाता है, जब पैसे आने लग जाते हैं, तो फिर कहीं भी प्रभु के नजदीक वो दिखाई नहीं पड़ता। That's why people of the world, especially in the Christian world, he's teaching, prosperity. Show me one billionaire in the kingdom of God. Show me. और देखिए इसी वजह से देखिए दुनिया के लोग और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं क्या बात समृद्धि के बारे में बात करते हैं, समृद्धि के बारे में बात करता है। दिखाए एक भी मसीह जगत में कोई एक अरबपति दिखाए, कोई भी Nobody is there. कोई भी नहीं। You see, that's the problem. और आप देखते हैं यही तो दिक्कत है। Can God trust us? क्या परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? Today, whatever, whether you need physical deliverance, financial deliverance, mental deliverance, or whatever, all this deliverance has only one purpose, is to serve the Lord. और Hallelujah. देखिए आज आपको किसी भी प्रकार के छुटकारे की जरूरत, चाहे मानसिक छुटकारा हो, शारीरिक छुटकारा हो, या फिर आप आर्थिक छुटकारा पाना चाहते हैं, इन सब छुटकारे का बस एक ही उद्देश्य है, वह है प्रभु की सेवा When करना। you understand the purpose, जब आप इस उद्देश्य को समझ जाएंगे, not only you can receive it, तो सिर्फ आप ग्रहण ही नहीं करेंगे, but you can also maintain it. लेकिन साथ ही साथ आप इसे बनाए भी रख सकेंगे। Somebody say, I understood it, I receive. कोई तो कहे कि मैं अब इसे समझ गया, मैं ग्रहण Today, करता my हूं। dear friend, आज मेरे प्यारे दोस्त, you will be in good health. आप अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। Say, thank you, Holy Spirit. कहिए धन्यवाद पवित्र Thank you, आत्मा, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Your children will go to a new level. आपके बच्चे नए स्तर में जाएंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lift your hands and say, I receive it. अपने Hallelujah. हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूं। You see, one day, if you read the book of Matthew, chapter 8, देखिए एक दिन ऐसा पढ़ेंगे मत्ती के 8वें अध्याय में, Jesus came to Peter's house. वहां पर यीशु पतरस के घर में आते Jesus saw his mother-in-law, that's Peter's mother-in-law, lying with a fever. और वहां पर आकर यीशु देखते हैं कि पतरस की सास जो है बुखार से पीड़ित होकर वहां पे लेटी हुई है। Now today, आज people are having fever. लोगों को बुखार है They get upset. और वे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। And you see what all people talk about it. और आप देख सकते हैं कि लोग क्या क्या इसके बारे में बोलते हैं। Once people get fever, a little cough, our own people in the family, they will not even come to see you. और देखिए एक बार अगर किसी व्यक्ति को देखिए आज के जमाने में मान लीजिए थोड़ा सा बुखार हो गया या सर्दी खांसी हो गई, तो हमारे खुद के लोग उनके करीब नहीं आएंगे उन्हें देखने। It's such a painful thing. बहुत ही दर्दनाक चीज हो गई है ये। And if somebody certifies you that you have, whatever, और अगर मान लीजिए कोई इस बात को सत्य प्रमाण देता है कि आपको ये हो गया है, they don't even know whether the test is right or wrong. और देखिए उन्हें तो ये पता भी नहीं होता कि जो जांच कराया गया है वो सही भी है या गलत है।
The own family members will not come near. परिवार के लोग ही नजदीक नहीं आएंगे उनके, But Jesus will not leave you. लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे You हालेलुया। see, the Bible says Jesus came and touched her hand, देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु आकर उनके हाथ को छुए and the fever left her. और उनका बुखार उतर गया। And that was not the end of the story. और कहानी का यही अंत नहीं है। And then the Bible says she arose and served them. Come on, somebody say the word them. और देखिए बाइबल में आगे लिखा है कि वो उठकर उनकी सेवा करने लगी। सिर्फ उनकी सेवा Now करने notice, लगी। she और did करें। not only serve Jesus. Help me with my English. She did not only serve Jesus, because it would be then she served him. She not only served Jesus, she also served the people, those who were with Jesus. That's why it says them. Come on. और देखिए ऐसा नहीं हुआ कि उसने उठकर सिर्फ यीशु की ही सेवा की। अगर यीशु की सेवा की होती तो ऐसा होता उसकी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उठकर जो यीशु के साथ जो अगुए लोग आए थे, यीशु के साथ जो मंडली आई थी, उनकी सेवा वो करने लगी। My friend, दोस्तों today make a decision before the Lord. आज प्रभु के सामने एक फैसला नहीं I am going to serve you, Lord. कि प्रभु मैं आपकी सेवा करने जा I'm रहा हूँ। going to serve you with my time. अपने समय के साथ मैं आपकी I'm सेवा going to करूंगा। serve you with my strength. अपनी ताकत के साथ मैं आपकी I'm सेवा going to करूंगा। serve you with my अपने finances. पैसों के साथ मैं आपकी सेवा I'm going to serve you with my intelligence, whatever you have given me, Lord. और प्रभु जो भी बुद्धि और ज्ञान तूने मुझे दिया है, समझदारी दी, उसके जरिए मैं तेरी सेवा Don't tell me, don't tell anybody, but make a decision before God. करूंगा। आज किसी और से किसी को भी मत बताएं ये बात, लेकिन आज प्रभु के सामने आप खुद फैसला लें। Because the gospel has to be preached, my brother, my sister. क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन सुसमाचार का प्रचार किया जाना जरूरी है। People have to be touched. It's not alone that Pastor Michael and Pastor Ravi or somebody else. No, my friend, God needs you wherever you are, in whichever country you are, in whichever city you are. I appreciate you for tuning in. May the Lord speak to you, my brother, in Jesus' name. और देखिए सिर्फ हमारे प्रचार करने से ही चीजें नहीं होंगी, Yes. लेकिन जरूरी है कि जहां से भी देखिए, जिस नगर, जिस Yes. शहर, जिस देश में से भी आप Yes. देख रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार किया जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। I came from an ordinary background. और हम एक मामूली से पृष्ठभूमि में से आए My हैं। father was an ordinary garage mechanic, पासवान जी के पिताजी एक साधारण से गैरेज मैकेनिक थे, but I thank God for him. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद उनके लिए। You are much better than me. तो आप हमसे कहीं बेहतर हैं, God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल But He wants you to make that decision today. लेकिन वो चाहता है कि आज आप ये फैसला लें। You must say, Lord, आपको कहना चाहिए प्रभु use me. आप इस्तेमाल करें, Say, Lord, I will serve you. और कहें प्रभु मैं आपकी सेवा And करूंगा। then He will lead you. And you see, whatever belongs to the Lord, if anything is used in the service of God, it cannot be bound. If the donkey was carrying Jesus, it could not be bound. Hallelujah. Somebody receive this revelation right now. और देखिए कोई भी चीज अगर प्रभु के लिए Yes. इस्तेमाल की जाती है तो देखिए वो बंधा हुआ नहीं रह सकता। उस गधे का इस्तेमाल प्रभु के लिए किया गया, देखिए फिर वो बंधा हुआ नहीं रह गया। कोई तो चिल्लाए इस वक्त हालेलुया। Somebody say, I receive this word. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण And करता हूं। as Peter's mother-in-law, she understood that, yes, I'm healed today. You know, some of you are suffering from this virus. Some of you are suffering from a fever. Don't fear. Don't fear. God is good. Hallelujah. और देखिए जब पतरस की Pray, सास begin ने to इस बात pray, को समझ begin लिया to कि pray. ओ मैं चंगी हो गई हूं। देखिए आप में से कुछ लोग इस वायरस से पीड़ित हैं, इस प्रकार के बुखार रोग से पीड़ित हैं। देखिए डरिए नहीं, प्रभु बड़ा है, भला है। Lord will deliver you.